into the meditation. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आंखें बंद करिए 1 सेकंड के लिए before we start anything. And when I say ये कौन सी इच्छा है आपके दिल में, कोई भी एक इच्छा, उसकी छवि डाल लीजिए. By picture, I mean fulfillment of a very special desire. We shall choose it before we start this meditation. I'm giving you a moment. सजा लीजिए प्यार से. एक, कोई भी एक. Is that Saloni there too? I see Saloni Mehta. Okay. All right. ठीक है. We will begin now. आप सब आराम से बैठ जाइए कोई ऐसी जगह पर जहां आप अपनी बैक को टिका सकें. So we shall begin. आप सब आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए. अपने पलकों को रिलैक्स करके बंद कर लीजिए. Let us start at the very beginning. It's a very good place to start. So welcome. Welcome to this special morning. Welcome to this special moment, a very sacred moment. Gather all your energies from everywhere scattered and bring it to your heart center. Feel it in your heart center. Take your attention to your heart center. There is nothing you need to do now. There is nothing you need to fix. कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं संवारना है, कुछ भी नहीं बनना है in this moment. Just relax. Just allow yourself to arrive at this moment. So if you're listening to this, your subconscious mind has already said yes. आप अगर मुझे सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो आपके अवचेतन मन ने ऑलरेडी तय कर लिया है कि आज हम कुछ बदलेंगे. And now your conscious mind may rest.
like a guard that gently steps aside while something deeper, wiser, older takes the lead. Take a slow breath in through the nose and a long, unhurried breath out through the mouth. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए नाक से और उसे छोड़ दीजिए बहुत आराम से लंबी गहरी श्वास मुंह से फिर से take a low slow breath in through the nose and a long gentle breath out through the mouth. फिर से एक बार पर और स्लो. Now bring your awareness to the crown of your head. Imagine a warm liquid that is calm, absolutely calm, being poured downwards through your head, across the scalp, the forehead, which has become smooth, आपकी आंखों के ओर, आपके जबड़े लूज हो रहे हैं, आपका टंग soften हो गया है, even the tiny muscles जिनके आपको नाम तक नहीं मालूम, सारे relaxed, deeply relaxed हो गए. This calm warmth moves into the neck. Allow it to move into the neck, the shoulders. This is melting burdens you did not know you were carrying. और नीचे आने दीजिए. Now, down the arms, down the elbows, the hands, हर एक उंगलियों के through. And it is switching off any effort, any feeling of effort. Your chest is rising and falling. आराम से आपकी सांस ऊपर और नीचे हो रही है. The calm is flowing into the heart space. Soft, open, and safe. Down now through the abdomen. Digesting not just food, but also old emotions, old stories, and old tensions. Now this warm, calming feeling is reaching your hips, your thighs, your knees, your calves, ankles, and then finding the soles of your feet.
Remember, now you're fully supported, fully held, and fully safe. Continue to imagine you are descending, not down, but inward. अब आप उस जगह पर पहुंच रहे हैं, वो शांत जगह जो आपके बिल्कुल गहराई में है, जहां सिर्फ आप जा सकते हो। जब भी आपका मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर हो जाता है, आपको वो जगह दिखाई दे रही है, वही स्पेशल जगह। फील इट, सेंस इट। दिस इज योर सबकॉन्शियस सैंक्चुरी। दिस इज आपके अवचेतन मन की वो स्पेशल जगह है, जहां सिर्फ आप जा सकते हो और आपको बिल्कुल सुरक्षित महसूस होता है। अब आप वहीं पहुंच गए हो, राइट हियर, राइट नाउ। राइट हियर, राइट नाउ, टाइम हैज बिकम सॉफ्ट, लॉजिक थम गया है, एंड ओनली ट्रूथ speaks softly. In this space, you are safe to receive. आप ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। It is safe to change, safe to allow something new to root itself. Now, without effort, without any strain, फिर से याद कीजिए, कोई वही डिजायर, वही इच्छा, उसको याद करिए, शब्दों से नहीं, एक फीलिंग से, एक समझ के रूप में, एक बोध के रूप में। फील इट like a quiet yes in your body. Now, imagine this desire, इस इच्छा को, like a luminous seed, एक एक आभा में बीज की तरह, एक दीप्तिमान बीज की तरह, ज्योतिर्मय। और ये बीज बिल्कुल परफेक्टली फॉर्म्ड है, इन शेप, इन ग्लो एंड इन फील। इस बीज के अंदर सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत हो। और बीज तो ऐसे होते हैं, दे ग्रो नेचुरली। याद रखें, बीज स्वाभाविक रूप से उगते हैं, विकसित होते हैं, जब उन्हें सही मिट्टी मिल जाती है। सही मिट्टी मिलने पर बीज अपने आप उगते हैं। इस बीज को प्यार से महसूस कीजिए, उसके वार्मथ को, उसके ग्लो को भी महसूस कीजिए।
Your subconscious mind is the richest soil there is. आपका अवचेतन मन ही सबसे उपजाऊ मिट्टी है. Gently place the seed into the center of your being, perhaps your heart or your solar plexus or anywhere else. इस बीज को जहां उसकी सही जगह है पहुंचने दीजिए. Feel it. Wherever it settles, it locks in. जहां भी आपको गाइडेंस मिला हो इस बीज की सही जगह का, अब वो वहीं बैठ गया है. वही उसकी जगह बन चुकी है. Imagine, think, or feel the seed is resting. Your subconscious mind knows exactly how to nourish it. आपके अवचेतन मन को पता है किस तरह से पोषण देना है, किस तरह से पोषित करना है. Through your choices, through your instincts, आपके अंतर्ज्ञान से, through your timing, उचित समय पर, through your actions, your कार्य क्रिया सारे, even your rest, उस वक्त भी, विश्राम के वक्त भी, इस बीज को पता है किस तरह से ग्रो होना है. From this moment forward, your subconscious mind is now beginning to work on your behalf. आपके मन की इच्छा की पूर्ति अब से शुरू. आपके अवचेतन मन ने इस कार्य को संभाल लिया है. You shall feel aligning thoughts, filtering opportunities. You will know you're getting drawn towards the right people, ideas, and moments that naturally support the desire. You don't need to chase it, you don't need to struggle for it. Just recognize it. सिर्फ पहचानिए उसको. This fulfillment becomes more and more familiar. आपकी पहचान इस इच्छा से और जुड़ती जा रही है. इस इच्छा की छवि को बहुत करीब से देखते रहिए. बार बार देखिए. इसे बिल्कुल familiar बना लीजिए. अपने करीब बना लीजिए. From now on, every time you relax, every time you breathe deeply, consciously, and every time you trust your instincts, this seed strengthens.
आपके मन के इच्छा की बीज को सहारा मिलेगा, बल मिलेगा, वो सशक्त बनता जाएगा। जब भी आप रिलैक्स हो जाओगे, जब भी आप अपने सांस को गहरी रूप से लोगे और अपने अंतर्ज्ञान को आप ट्रस्ट करोगे, इस बीज का ग्लो फिर से फील करिए। And now I shall count from 1 to 5, and with each number you will feel more and more integrated with this desire. आपकी familiarity with your मन की इच्छा और तेज होती जाएगी। Quietly active होता जाएगा। 1. Bring a gentle awareness, returning. एक कोमल जागृतता की वापसी हो रही है। 2. Your breath is deep. श्वास की सहजता भी वापस आ गई है। Your body is waking softly. आपकी शरीर जाग रही है। A sense of calm confidence is settling in your nervous system. एक शांत आत्मविश्वास की भाव आपके पूरे बॉडी में बैठ गई है। जब भी आपको सही लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हो। जो आपके लिए नियत है वह धीरे धीरे विकसित हो रहा है और होता ही रहेगा। आपको दिशा दे रहा है और आपके साथ गतिमान है, यानी जो आपका है वह आपके साथ अब से बढ़ता ही रहेगा। Allow your desire to completely integrate into your body, mind, and spirit. Whenever you are ready, you may slowly open your eyes. Thank you so much, Sushmita ma'am. Thank you so much. Thank you. बहुत अच्छा था आपका, बहुत ही स्वीट वॉइस और बहुत ही काम। Thank you. बहुत सुपर। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मैम। Thank थैंक you. यू सो मच। Thank you. Just some more
things which I have learned through experience. Like I said, जब भी आपको वक्त मिलेगा, keep imagining that seed is growing inside you. यस मैम। Anytime, anytime. And the more familiar we become with that desire, the more we are closer to its fulfillment. थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सुष्मिता। I just want to tell you something, Rakesh, यस that, मैम। sorry, Rajesh. I get, इट्स ऑलराइट, नो इशू। uh, uh, whenever you want me to create a meditation, please feel free. I'll be happy to do it. यस मैम, थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू मैम, सो काइंड ऑफ, थैंक यू सो मच। Thank you. अब मैं डिम्पल मैम आ गई है, डिम्पल मैम का टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। 6:30 हो गए। डिम्पल मैम, आज हमारा चैप्टर 8 है और आई एम योर रीडर टुडे। ओके मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Good morning. Good morning, everyone. Am I audible? यस यस मैम। Okay. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है जहाँ पर जिस टाइम अगर रिकॉर्डिंग देखेगा तो उसके लिए गुड आफ्टरनून भी हो सकता है, गुड इवनिंग भी हो सकता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, टू ज्वाइन इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ अवर मैजिक बुक। वो जर्नी जिसमें हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्वाइन करी है। क्या मोटिव है हमारा इसके पीछे, कि उस अपनी इच्छाएं इच्छाएं जो पूरी करनी है उसको प्राप्त कैसे करना है, अपने अंदर की शक्ति को जगा के। और वो शक्ति कैसे जागेगी, जब उसमें ग्रेटिट्यूड का वो पोर्शन भरेंगे। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग रिंकी जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अब हम मैजिक बुक की शुरुआत, तो हमारी हमारी मैजिक बुक की शुरुआत भी ऐसी हुई है कि हमें चाहिए क्या भैया, तो मतलब तेरे सपने क्या हैं। स्टार्टिंग से ही हमने इसमें ये मेंशन किया था कि क्यों हो तुम इस जर्नी में, यहाँ पर तुम कुछ प्राप्ति करने आए हो। तो अपने सपने तो हम बिल्कुल क्लैरिटी से लिखे हुए हैं ना सबने, है ना। अभी चैट बॉक्स पे एक्टिव रहना। तो जब सबने अपने सपने लिखे हैं तो, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई हम भगवान से मांगे क्यों, ये क्या जरूरत है। भगवान को पता है, कई लोगों की सोच ये भी चलती है, भगवान को पता है हमें कब क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वो अपने आप हमें दे देगा। लेकिन आप समझो ना कि भगवान जो है ना वो भगवान जो है वो हमसे बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। जैसे परमात्मा है, जो आत्मा है वो परमात्मा का तो अंश है, लेकिन परमात्मा हमसे कुछ करवाना चाहता है। क्या करवाना चाहता है, आपको क्या लगता है? कि हम उस लाइफ के अपने पर्पस तक पहुंचे, जिस पर्पस के लिए हमने जन्म लिया। जैसे सपोज हम इस एग्जाम्पल को ऐसे समझ सकते हैं कि माँ बाप है, माँ बाप अपने जैसे पेरेंट्स हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ है, उनकी शादी हुई, वो बच्चा आगे क्यों चाहते हैं? उनको लगता है उनका बच्चा हो, उनका नाम रोशन करे। क्यों? वही देखो, वो उनका नाम रोशन करेगा तो उनकी भी रोशनी बढ़ेगी, बच्चे की तो रोशनी बढ़ेगी बढ़ेगी, माँ बाप की भी रोशनी बढ़ेगी। तो ऐसे परमात्मा भी यही चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं भैया जब तुम पैदा हुए हो तो अपना नाम रोशन करो, और अपना नाम रोशन करेंगे तो प्रभु का नाम भी रोशन होगा। लेकिन इस जर्नी में हमें आगे बढ़ना कैसे है? क्यों प्रभु चाहते हैं कि हम उनका नाम रोशन करें? नाम रोशन करना मीन्स अपनी जिंदगी के पर्पस को पाना। कि हम भगवान, हम जब हम पैदा हुए हैं यहाँ पे, मैंने कल भी कहा था कि धरती पे हम आए हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्त करने आए हैं, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने आए हैं। तो परमात्मा भी अगर हमसे कुछ करवाना चाहते हैं कि हम उस पर्पस तक पहुंचे, तो पहले उस पर्पस तक पहुंचने के लिए अपने से ये तो पूछो ना कि क्या मैं अपनी उन छोटी छोटी चीजों को पूरा कर पाया हूँ। परम, मैं कहते हैं ना कि परम पर्पस, जो रियल पर्पस आपको पहुंचना है, तो उसके लिए पहले मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, दिखती दुनिया में आपको वो सब चीजें प्राप्त करनी है जो आप चाहते हो, जिसके लिए आप आए हो। जैसे कि छोटी छोटी चीजें क्या है, सबको अपनी ड्रीम लिस्ट याद है? सबको अपनी ड्रीम लिस्ट में क्लैरिटी है? अभी तो देखना आपकी ड्रीम लिस्ट भी कैसे चेंज होगी। तो परमात्मा का मकसद क्या है कि हम उस पर्पस तक पहुंचे, लेकिन उस पर्पस तक पहुंचने के लिए हमें अपनी छोटी छोटी डिजायर्स को, विशेस को फुलफिल करना होगा। लेकिन हम यहाँ पे अपनी डिजायर्स फुलफिल करने आए हैं, नीड फुलफिल करने आए हैं, ग्रीड नहीं। क्योंकि ग्रीड का कोई अंत नहीं है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नीड क्या है और ग्रीड क्या है? इसकी क्लैरिटी भी मैंने स्टार्टिंग में दे दी थी, अगर सबको याद होगा।
और वो नीड और ग्रीड में हमें अंतर तब पता चलेगा जब हम इसमें ग्रेटिट्यूड की रोशनी डालेंगे। जितना हम ग्रेटफुल होते रहेंगे अपनी हर चीज के लिए, अपनी हर चीज के लिए जितना ग्रेटफुल होंगे, उतनी ही हमारी लाइट जब बढ़ेगी तो हमें पता लग जाएगा। कभी कभी तो होता है ना, देखो जैसे अब मन कर रहा है, मेरी नीड है कि मेरी नीड है सिंगिंग, मुझे गाना गाना, या किसी की नीड है उसको खेतों में जाना है, गाँव में रहना है, उसको वहां की फ्रेश एयर अच्छी लगती है। लेकिन दिमाग कह रहा है भाई फलाने का बेटा तो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, उसके पास तो इतना बढ़िया पैकेज है, उसको इतना कुछ मिल रहा है, तो मुझे भी वही बनना है। तो ये कहाँ आ गया, ये माइंड का आ गया खेल, कि माइंड एनालाइज करता है, कंपेयर करता है, सब कुछ करता है। तो लेकिन हमें वहां पे नहीं जाना, हमें कहाँ पे जाना है, जो हमारी दिल की इच्छा है। बट लेकिन देखो मैं ये कहूँ कि नहीं, अब दिल की इच्छा है तो हम अपना सब कुछ छोड़ के वहां वो करें। दिल की इच्छा तक हम डेफिनेटली पहुंचेंगे जब हम अपने उस काम को जो हमें अभी मिला है या उस पर्पस की तरफ हम उसमें शिद्दत से अपनी पूरी जान डाल देते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? ये सब मैं पहले वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये इसलिए दोबारा से रिपीट करती हूँ कि तब हम सब उस एनर्जी में पहुंच जाए कि जिसके लिए हमने ये सब ज्वाइन किया था। तो जैसे अब मन, दिल और दिमाग में ना कई बार अंतर्द्वंद सा चलता रहता है कि दिल तो कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और कहता है। लेकिन ये कहते हैं ना, ये भी ओके है, कार्मिक सर्कल में हम हैं तो हमें अब काम भी वो पूरे करने हैं। तो सबसे पहले वो दिल की रोशनी तक पहुंचने के लिए, अपनी दिल की इच्छा तक पहुंचने के लिए हमें पहले क्या करना है, कि पहले जो हमने कल चैप्टर किया कि नेगेटिव सिचुएशंस को, जो हमारी लाइफ की है उथल पुथल जो वहां पे उस एरिया में, उसको थोड़ा सा शांत करें। कैसे शांत करेंगे? कैसे शांत करेंगे? हर नेगेटिव सिचुएशन को शांत करने का तरीका क्या था, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का क्या तरीका था? यस, कृतज्ञता की रोशनी से, सही। कृतज्ञता के अमृत से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने सोचा कि अम, हमारी जो प्रैक्टिसेस थी, सपोज अगर किसी को मनी मनी के एरिया में दिक्कत आ रही है तो मैजिक मनी, हेल्थ के एरिया में दिक्कत आ रही है तो मैजिक हेल्थ। और कौन से चैप्टर से बताओ फिर? मैजिक रिलेशनशिप्स रिलेशन। में रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ रही है तो मैजिक रिलेशनशिप्स। मतलब मैजिक क्या है? मैजिक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ना, कि मैजिक इज इक्वल टू ग्रेटिट्यूड। मैजिक वर्ड का मतलब ही ग्रेटिट्यूड है। तो फिर अब जो जहां 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 सब आ रहा है, वर्क करियर में दिक्कत आ रही है, वर्क में दिक्कत आ रही है तो मैजिक इन वर्क। नेगेटिविटी है, बहुत छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आउट ऑफ नेगेटिविटी, जो हमारा कल चैप्टर था। तो ऐसे धीरे 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 करके हम अपने उस उद्देश्य पे पहुंच ही जाएंगे, कि जब हम इन सब चीजों में अपनी नेगेटिविटी हटा के वहां पे पॉजिटिविटी भरेंगे। तो पहले अपने उस परम पर्पस की से पहुंचने से पहले हमें जो अपनी नौकरी में पाने की इच्छा है, या बच्चे पाने की इच्छा है, या लाइफ में कुछ भी मटेरियल दिखती दुनिया में जो भी हमें पाने की इच्छा है, उसको हमें पूरा करना है। और वो हमें पता कैसे चलेगी कि हमारी सच में इच्छा है, ये हमारा लालच नहीं है। कई बार होता है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम दूसरों की इच्छाएं देखते हैं तो हमें लगता है कि ये, और जब आप अब आपने अपनी लिस्ट बना ली है ना इच्छाओं की, धीरे धीरे क्या होगा, जब आप ये अब आप इस ज्ञान की रोशनी में आ चुके हो, अब जब आप इस ज्ञान की रोशनी में आ चुके हो तो बिल्कुल आपको क्लैरिटी अब होनी शुरू हो जाएगी। कहीं किसी लिस्ट में किसी ने लिखा होगा ना, मुझे तो रॉलेक्स चाहिए, या मुझे लुई विटॉन का पर्स बैग चाहिए, या मुझे XYZ कोई भी ऐसी चीज चाहिए, आप जब दोबारा अपने साथ बैठोगे ना तब आपको पता लगेगा, यार मेरे ना क्या जरूरत है मुझे इसकी, मेरी सेटिस्फेक्शन इसमें है। तो ग्रेटिट्यूड आपको वहां लेके जाता है जहां पे आपको दिल से अपनी इच्छा का आभास होता है। स्टार्टिंग में तो ना हमारी इच्छाएं ऐसी होती है कि हम हमें लगता है हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जो दिल की इच्छा होती है ना, वो शुक्राने से ही, ग्रेटिट्यूड से ही, कृतज्ञता से ही आपको पता चलती है कि ये आपकी दिल की इच्छा है। तो फिर अब लग जाओ शिद्दत से। अगर दोबारा लिस्ट चेंज करनी पड़े ना तो कर दो लिस्ट चेंज। ठीक है, दोबारा लिस्ट चेंज करनी पड़े तो लिस्ट चेंज कर दो। दोबारा से अपनी लिस्ट देखना। ये नहीं कह रही कि करनी करनी है, लेकिन बैठोगे ना तो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्टली लोगों को लगेगा कि यस ये मेरी इच्छा नहीं है, आई थिंक आई शुड चेंज टू दिस। तो आज दोबारा अपनी ना उस लिस्ट पे नजर मारना और देखना कि आपकी इसमें क्या इच्छा है। ठीक है। और अब जो आज का कमाल का चैप्टर है उसका क्या नाम है? जादुई तत्व। हाँ, जादुई तत्व। जादुई तत्व। तो अब एक इसमें, अब जैसे मैं आपको एक बात कहूं, इस चैप्टर को समझने के लिए ना जैसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की एक जरूरत है। जैसे हिंदुइज्म में तो ये बड़ी क्लैरिटी है। ये इसकी सेटिंग चेंज करना मेरे को, एक मिनट। हम्म। जैसे हम हिंदुइज्म में इस चीज को समझे, अमृत, अमृत का नाम तो सबने सुना होगा। अमृत क्या होता है? अमृत, अमृत, अमृत वेला। या सिखिज्म में भी सुना होगा, अमृत धारण करना।
जिसने अमृत ले लिया, अमृत चख लिया, वो क्या होता है ये सबको पता है? इसमें अमृत का क्या मतलब है? मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, व्हाट इज अमृत? किसी को पता है अमृत क्या होता है? चैट बॉक्स में आप लिखो। बताओ। अच्छा ठीक है। अमृत है जो मृत नहीं है, अमर है, प्योरेस्ट थिंग। ठीक है। अमृत इज विच इज नॉट मृत, विच इज अलाइव, कि जो भी जिंदा है, जिसमें वो तत्व, जैसे कि वो याद है ना कि अमृत मंथन हुआ था, कि जब वो उसका किसका मंथन हुआ था, अमृत धारा, ये क्या कहते हैं जिसको, अमृत मंथन हुआ था, तो उसमें जहर भी था और अमृत भी था। तो जहर को हम साइड पे करते हैं, अमृत वो तत्व है। हाँ, सागर मंथन हुआ था, यस राइट, सागर मंथन हुआ था, तो उसमें हम अमृत भी था और जहर भी था। तो अमृत क्या होता है? कि अमृत वो होता है कि जिसमें आपका एक पार्ट है कि डेड है और एक alive। अमृत जो कि कभी मरा नहीं है। तो उस मरा, तो वो जो पार्ट अभी तक, मीन्स अगर अपनी लाइफ में आप ये सोचो कि हम कहीं पर अटक गए हैं, सपोज पैसों की दुनिया में या किसी भी लाइफ के ऐसे एरिया में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, हमें लगता है कि हम बस अब तो यहाँ पे सब कुछ खत्म है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे फिर भी कुछ ना कुछ, आप चाहे कहीं पर भी कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं वो चीज कुछ ना कुछ अलाइव होती है, क्योंकि ये चीजें अमृत है। तो ऐसा कौन सा ऐसा मैजिक पोशन है, कौन सा ऐसे जादुई तत्व है कि हम उस अमृत को जगा लें, वो हमारी लाइफ में आ जाए, कैसे प्रकट हो जाए? ये है आज का चैप्टर। आई होप कि इसमें सबको क्लियर हो गया कि क्या होता है अमृत मंथन, और उसमें हम कैसे, मतलब अभी भी उम्मीद कैसे है कि भी हम उन चीजों को अपनी लाइफ में जगा दें जिनका चाहे सब कुछ खत्म हो गया अभी लाइफ में, सब कुछ हम बिल्कुल डाउन पर आ गए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो एक ऐसी अलाइवनेस है, वो अमृत है, वो चीज अलाइव है जिससे हम सब कुछ आज भी प्राप्त कर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का चैप्टर, 8वां दिन, जादुई तत्व। हाँ जी, ये लाइन पढ़े। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। डब्ल्यू जे तो अब सबसे कैमरॉन। पहले आप, हाँ जी पढ़िए, पूरे करिए। WJ। डब्ल्यू जे कैमरॉन 1879 टू 1953, पत्रकार व व्यवसायी। अब आपकी ना जो नजरें है ना, वो सिर्फ इस लाइन पे थोड़ी देर गड़ाए रखो देखिए, कृतज्ञ हृदय कृतज्ञ निरंतर हृदय जश्न मान। निरंतर जश्न मनाता है। हाँ, तो मीन्स हार्ट, हृदय मीन्स हार्ट। कि देखो, चाहे आपके पैर चले ना चले, आपके हाथ चले ना चले, आपकी आंखें, कुछ भी हो, आपका कुछ भी ना चले, लेकिन धरती पे आने से पहले, मीन्स कि अपनी मदर के वूम में, अपनी माँ के पेट में आने से पहले, जब एक आत्मा एंटर करती है तो सबसे पहले उसका क्या बनता है? उसकी बॉडी, बॉडी का सबसे पहला ऑर्गन क्या बनता है? हृदय, और दिल। ठीक है। क्यों? धड़कन होती है, वही आत्मा का वास होता है। उसके बाद आगे आगे पूरी बॉडी बनती है। आपका देखो, बॉडी में कुछ भी हो जाए, मतलब बॉडी जैसे बातें बनेगी, और इसको दूसरी तरीके से भी देखो, हम लाइफ के उस स्टेज पे है कि हम सब कुछ, हम, मतलब कि हम चाहे हमारा ब्रेन भी डेड हो गया, लेकिन हमारी दिल की धड़कन है ना, वो एंड तक चलती रहती है। मीन्स माँ के पेट से लेके जब तक हम जब तक हम जिंदा हैं, तो हमारी दिल की धड़कन चलती रहती है। तो दिल वो एक ऐसी चीज है, दिल में वो इतनी शक्ति, जैसे कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जो हृदय है ना, वो इस आत्मा का चोला है जो कि कभी नहीं मरती। देखो, हमारी एनर्जी चेंज होती है, जैसे कि शरीर को रिन्यू करते हैं, शरीर हमारा रिन्यू होता है, दिमाग हमारा रिन्यू होता है। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं, तो एक दिल ही ऐसी चीज है जो हमारे लिए धड़कता रहता है, और उसके अंदर ही वो सारी पावर है। और जो दिल के अंदर पावर है उसको क्या कहते हैं? आत्मा, क्योंकि आत्मा का निवास ही हमारे दिल में है। तो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जश्न मना रहा होता है किस चीज का? बताओ किस चीज का? जब जब कोई जज बना रहा होगा, तो वो एक्साइटिंग एनर्जी में होगा, अलाइवनेस की एनर्जी में होगा, जिंदा होगा इस मोमेंट को। तो इस मोमेंट में खुशी में रहना, गुड फीलिंग में रहना, कि जो भी आपकी लाइफ में आज तक आप कहाँ पे किसी भी स्टेज में पहुंच गए, आपकी लाइफ में चाहे जितनी मर्जी नेगेटिविटी है, फिर भी आपके पास आज पूरा चांस है अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का, रिन्यू करने का, दोबारा से शुरू करने का। तो मतलब ऐसा क्या है इस दिल में कि जिसकी हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिस मिल जाए कि जो निरंतर हमारा हृदय जश्न ही मनाता रहे? कौन सी ऐसी चीज है कि उसको कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारा दिल जो है ना, वो बिल्कुल इस तरह से रहे कि वो जश्न ही मनाता रहे? बताओ कौन सी ऐसी चीज है? अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा सबको, जितना मैं समझ रही हूँ। बताओ। ग्रेटिट्यूड, यस, बिल्कुल राइट। कि जैसे सपोज अगर किसी का बिजनेस बिल्कुल जीरो पे आ गया, उसको लगता है कि भाई अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अगर आपका दिल में शक्ति है, वो जश्न है, वो ग्रेटिट्यूड है, आप फिर से वो अपना एम्पायर क्रिएट कर लोगे। आई होप एवरीवन इज गेटिंग माई पॉइंट।
कि दिल के पास ही इतनी शक्ति है, जब वो दिल जश्न मनाएगा, खुशी में रहेगा, लाइवलीनेस में रहेगा, तो उसके पास अपने आप वो चीजें आ जाएंगी कि जो उसको चाहिए जिंदगी में। तो कृतज्ञता ही वो मैजिक तत्व है, वो जादुई तत्व है, जिससे हम, जिसको बढ़ाने से, हाँ जी, जिसको बढ़ाने से हम वहां तक पहुंच जाएंगे जो हमें चाहिए। तो आज हम मतलब ऐसा क्या करने वाले हैं कि जो इससे हमें मैजिक पोशन को और हम बढ़ा सकें? क्या करने वाले हैं बताओ पहले, क्या करना है, क्या बोलना है? आज हम उस खादान को तलाशने वाले हैं कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि भैया हम इस मैजिक पोशन को कैसे बनाएं। अब सपोज इसको आप ऐसे लो, जैसे कि मैंने भी बच्चे का एग्जाम्पल दिया, बच्चा माँ के वूम में आया, पेट में आया, तो पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो उसको मतलब ग्रो भी करता है बच्चा, लेकिन वो ग्रो कैसे करता है? ग्रो कैसे करता है, हमारे मुझे ये बताओ। भोजन से हम्म। जो उसको मिलता है, पौष्टिक आहार मिलता है उससे। हाँ, पौष्टिक आहार मिलता है ना? तो वो जैसे इतना छोटा सा होता है, फिर वो धीरे 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 ऐसे बड़ा होता है ना? और वो बड़ा कैसे होता है? अब इसको ये भी सोचो, अब जैसे मैं हूं या आप हो, किसी ने 3-4 दिन तक खाना नहीं खाया, उसकी एनर्जी, उसकी एनर्जी तो हम क्या बोलते हैं, भाई एनर्जी बड़ी डाउन लग रही है, आज खाया नहीं जा रहा, मतलब आज हमने कुछ खाया नहीं है, तो हमारे को वो पोषण कहाँ से मिलता है? हमारे खाने पीने से। हमारी ग्रोथ कैसे होती है? हमारे खाने पीने से। तो जो भी हमें मिलता है, हमारी ग्रोथ सब कुछ होती है वो खाने पीने से होती है। तो आज ना हमने उस चीज पे जाना है, हमने उस खादान को एक्टिवेट करना है कि हमारे खाने पीने में जो हमारी एनर्जी बढ़ती है, उसको हम और कैसे वो कर सकते हैं। तो इसका अभी आपको डीप ये चैप्टर समझ में आ जाएगा आगे धीरे धीरे पढ़ते हुए। भोजन। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं हाँ, तब तो ये, नहीं, एक मिनट, एक मिनट। जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। अगर देखो कोई भी जादू, मेरी आवाज आ रही है आ रही है। या वो ब्रेक तो नहीं हो रहा? आ रही है, नहीं नहीं ओके। आ रही है। ठीक है। तो देखो जो भी चाहता है कि उसकी लाइफ, हाँ, इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। देखो जादू अगर स्पीड में एक्टिवेट एक्टिवेट करना है तो लिसन दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। कि अब आप सोचो, आप पुराने जमाने में लोगों को आप याद है कि कोई भी खाना खाता था तो कैसे वो उसको पानी का अर्घ दे के, फिर एक वो निकाल के, गाय का हिस्सा या किसका हिस्सा निकाल के, फिर वो लोग अपने आप को खाना मतलब लेते थे। सबको वो चीजें याद है? तो सोचो आपने अपने प्लेट में आज सब कुछ रखा है, सब कुछ रखा है, और ये सब चीजें अभी तक, जब तक ये बॉडी के बाहर है तो ये खाना है, भोजन है, लेकिन ये जैसे अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये हम बन जाएंगे, जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही कंट्रीब्यूट करेगा ना, हमारी एनर्जी डालेगा। तो इसलिए आज ना सब पे चलो, सबसे पहले तो अब आज एक एक्सरसाइज कर लो सब, कि भाई अब कि जो भी अब हमारे मुंह से आज के बाद अंदर जाएगा, जो भी हमारे मुंह के अंदर जाना है ना, वो ग्रेटिट्यूड होके ही जाना है। मुंह पे हाथ रखो सब, मुंह पे हाथ रखो। हम्म। आज के बाद इस मुंह के अंदर चाहे खाना जाए, चाहे पानी जाए, चाहे कुछ भी जाए, तो सबने ये याद रखना है कि ये थैंक यू के बगैर नहीं जाएगा। कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो थैंक यू के बगैर नहीं जाएगा। और अभी आपको ना आगे धीरे धीरे पता लगेगी इसकी इंपॉर्टेंस। अब आप आगे रीड करिए राजेश जी। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत ये, तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और ये सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। हाँ, भोजन तो के अब लिए इस अधिक लाइन को अंडरलाइन कर लो सब। एक मिनट, एक मिनट। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। हमने 0 चैप्टर में पढ़ा था ना कि सोचने, बोलने और फील करने से क्या होता है, एनर्जी बनती है
है ना, एनर्जी बनती है। तो और भोजन को भी हम इस तरह से ट्रीट करके अगर अंदर डालेंगे, उसको हम थैंक यू करके अंदर डालेंगे, तो वही एनर्जी फिर हमारे अंदर जाएगी। सपोज देखो, अब जैसे आजकल क्या करते हैं बच्चे लोग, ईयरफोन्स लगा के खाना खाते हैं, या फिर वो कुछ फोन पे लगा होता है, कुछ भी चल रहा होता है, कुछ भी देख रहे होते हैं, और खाना अंदर उनके जाता रहता है। तो क्या जो जाएगा खाना, वो किस उसमें जाएगा, जो एनर्जी से वो देख हम्म। रहे होंगे, जिस एनर्जी से वो देख रहे होंगे। तो अब आप चाहे हम ही हैं, और अगर हम क्या कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट चल रही है, कुछ भी चल रहा है। जैसे कि ना, शुरू से मैंने ये चीज सुनी थी, और मैजिक बुक में आके मुझे बड़ी क्लैरिटी हुई इस चीज की, कि जब कभी हमारा मूड खराब होता है या ऐसी नेगेटिव मूड में होते हैं, तो क्या होता है कि आपको कोई कह दे, यार चल तू शांत हो जा, पानी पी, ठंडा हो, पानी पी, ऐसे बोलते हैं ना। तो जैसे कहीं पर किसी की डेथ में गए, वहां पे कोई बहुत रो रहा है, कुछ बड़े मतलब जैसे किसी को कोई तकलीफ है, कुछ है, सैड एनर्जी में है, मीन्स वो ऑलरेडी ना, अभी कोई बंदा दुखी है, लेकिन हम उसको कहें भाई तू पानी, तू शांत हो जा, तू पानी पी, ऐसे कहते तो। लेकिन उस टाइम पर वो जो पानी पीता है ना, वो उसके अंदर वो चीज, वो याद बैठ जाती है। क्योंकि पानी क्या है, पानी है जो मेमोरीज कैच करता है, जो आपकी थॉट्स को बड़े अच्छे से कैच करता है। तो पानी के अंदर वो सब चीजें रहती हैं। अगर हमने उस टाइम उस एनर्जी में पानी पी लिया, दुखी मन से, सैड एनर्जी से पानी पिया, तो वो मन अंदर वो रच बस गई। तो तभी तो कहते हैं ना कि किसी की डेथ को 15-20 साल भी हो जाते हैं, लेकिन वो बंदा ना उस इंसान को भूल नहीं पाता। ठीक है, देखो जो दुनिया में सब चीजें होनी है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ होता है, लेकिन खाने को स्पेशली हमने आज के बाद ध्यान रखना है। चाहे हम घर पे खा रहे हैं, चाहे हम बाहर खा रहे हैं, या तुम्हारे घर में जैसे कहते हैं ना कि भजन चलते रहते हैं, भजन चलते रहे, कुछ मंत्र जाप चलता रहे, कि खाने में हमारी वो पॉजिटिव एनर्जी जाती रहे। और पानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इससे कभी भी जब आप नेगेटिव जोन में हो, सैड एनर्जी में हो, तो आपको पानी ग्रहण नहीं करना, पानी नहीं पीना। और आज तो मैंने आपको वैसी एक टेक्निक बता दी कि ये मुंह है, मेरा मुंह बंद है, अब मेरे को मुंह के अंदर जो भी जाएगा ना, वो थैंक यू से पहले जा ही नहीं सकता, एंट्री नहीं है। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया प्रभु, चल पानी पी, शुक्रिया प्रभु चाहे टॉफी खाओ, शुक्रिया प्रभु चाहे गच्चक खाओ, शुक्रिया, थैंक यू। कुछ भी खाने से पहले मेरे मुंह से पहले थैंक यू निकलेगा, फिर वो चीज मेरे अंदर जाएगी। ठीक है, आगे पढ़िए। और ये जो मूवी देखते हुए या कार्टून, या हमने जैसे हमारे बच्चे भी ये सब देखते हैं, कुछ कुछ कभी कुछ रील्स देख ली, कभी कुछ, और ईयरफोन्स लगा के, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता नहीं वो ये क्या चीज देख रहे हैं, चाहे सिंपल उसमें लड़ाई है ना, सिंपल क्या लड़ाई, जो इतनी नेगेटिव फीलिंग है, तो वो खाना उस चीज उस स्थिति में ग्रहण किया, तो वही सब अंदर चलता रहता है। मूड्स वैसे होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन गया, हमारी एनर्जी का हिस्सा बन गया। तो हमारी एनर्जी क्या बनी उस टाइम, नेगेटिव। तो फूड इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट होती है खाने और पीने के द्वारा, वही एनर्जी से फिर हम रिएक्ट करते हैं, और वैसे हम मैग्नेट बन जाते हैं कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करें। समझ में आ गया सबको ये, कि जब फूड से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, पानी से, खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, अगर वो खाने और पानी में नेगेटिविटी है, तो मतलब वो हम ही बन गए, हम वो वाले मैग्नेट बन गए, हम नेगेटिव बन गए। और जब हम नेगेटिव बने, तो हम लाइफ में नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे खाने और पीने को पहले पॉजिटिविटी से, थैंक यू से भरना है, उसके बाद अपने अंदर लेके जाना है। और ये 30 दिन की आप प्रैक्टिस करना, ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। हाँ जी, चलिए। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले। इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीने तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। कहीं तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले वो लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। ये ना बांस पैराग्राफ उपलब्ध। दोबारा पढ़ना। हाँ जी, एक मिनट, ये पैराग्राफ सब दोबारा, पैराग्राफ क्या, आपको तो चैप्टर ही दोबारा रीड करना है। कभी आपने सोचा था कि जैसे ये फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले, कभी सोचा था कि कौन फसल काट रहा है, कौन सा किसान है, किस खेत में कौन सी फसल काट रहा है, हमें पता है? नहीं पता भाई, लेकिन उसकी तो मेहनत थी ना। हमारे पास तो रेडीमेड होके सब कुछ आ गया। कहाँ पर वो सामान आया, कहाँ पर वो सब्जी पहुंची, या मतलब कोई भी फ्रूट या कुछ भी हम खा रहे हैं, दूध दही,
कौन सी गाय का या भैंस का दूध या कहाँ से आ रहा है, हमारे घर पे तो पहुंच रहे हैं, हमारे पास तो पैकेट्स में, और या फिर पैकेज होके पहुंच रहा है, और पैकेज भी कहाँ से होके, पैकेट भी बन के फिर जो परिवहन है, जिस रोड से वो आ रहा है या जिस भी मोड ऑफ कन्वेंस से वो हमारे पास पहुंच रहा है, क्या हमारा दिमाग कभी इन चीजों पे गया था? सच बताना, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो। क्या कभी हमने इस बारे में सोचा था कि कहाँ कहाँ से हमारे पास खाना इस तरीके से आ रहा है? यस और नो? कि सबको पता था, इस चीज का आभास होता था सबको? मीन्स मुझे तो मैजिक बुक पढ़ के ये आभास हुआ कि भाई हाँ, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं, कौन सी रोड से या कौन से किस रास्तों से या कौन काट रहा है, या उसमें कितनी मेहनत लगी, किसने वो बीज बोए। यस, तो जिसने यस कहा बहुत अच्छी बात। और जैसे जैसे मेरे लिए तो ये स्टार्टिंग, जब तक मैंने मैजिक बुक नहीं पढ़ी थी तो मेरा ध्यान इस एरिया में नहीं गया था कि हाँ, कि कौन सा किसान है। चलो, पांच तत्वों का तो मैं फिर भी कह सकती हूँ कि सूर्य की शक्ति से, या वहां पे जो जल चढ़ा है, पानी था, उससे हमारी वो फसलें ग्रो होती हैं, चाहे वो दाल है, सब्जी है, कुछ भी है। मीन्स हमें तो सब कुछ रेडीमेड हमारे यहाँ पे मिल रहा है। और आजकल तो ब्लिंकिट और जेप्टो पे भी इतना कुछ है भाई, ऑर्डर करो ये। लेकिन मेहनत उनके पीछे कितने लोगों की है? तो क्या कभी ये आभास हुआ? तो वहां पे हमने शुक्राने किए, जैसे मैंने कल कहा था ना, होपोनोपोनो की प्रेयर में कुछ कुछ ना कुछ ड्यू है जो हमारा रह गया। तो अब हमने अभी आगे और बढ़ना है, तो भाई खाने की चीजों को सिर्फ किसान को ही थैंक्स देते थे। हाँ चलो, इतनी भी अवेयरनेस ही तो बहुत था, बट लेकिन वो किसान ने कब वो बीज बोया, कब उसने फसल काटी, और उस मिट्टी का, उस सूर्य का, उस वो पांचों तत्वों का, जिसके हवा का, ये बातें दिमाग में आई। या चलो अभी ये तो भी बात की बात है, वो जो पैकेट बन के पहुंचा और किस मोड ऑफ कन्वेंस से हमारे पास पहुंचा, हमारे तो घर के द्वार पे आ गया, तो क्या हम उसके लिए कृतज्ञ हुए कभी? नहीं हुए। तो ये मतलब ये बहुत बड़ी ओपनिंग थी, तो मैं इसको पढ़ते रह, पहले तो मुझे लगता था इतना, इतनी कृतज्ञता कैसे करेंगे, कैसे होगा? लेकिन जब ये आपके लाइफ के सिस्टम में एक बार आ जाती है ना, और फिर आपको देखना क्या 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 फील होता है। मैं बार बार आपको डेली आपको जरूर ये लाइन बार बार रिपीट करती हूँ कि जब आप ये करोगे तो आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि ये चीजें मैंने फील करी और मुझे इनकी इंपॉर्टेंस का पता चला कि ये होती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और ये समझ से परे है कि ये सब काम करता है। जब आप उस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तराओं, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज़ों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। हाँ भोजन देखो ना, मतलब कितने सारे लोग जैसे ये शामिल होते हैं कि अब जैसे इसमें लिखा था चाय कॉफी उगाने वाले, फूड पैकेजिंग कंपनियां, या जो भी, अब स्मॉल एज आप ब्रेड को ले लो, तो क्या हमें ब्रेड बनानी आती है? हम घर पे बनाते हैं, हमें तो रेडीमेड ब्रेड मिलती है, तो रेडीमेड वो ब्रेड का पैकेट हमारे पास पहुंचता है। तो क्या ये चीजें कभी दिमाग में आई थी कि अच्छा वो ये कौन सी कंपनी में बन रहा है, क्या और है, हम उसके लिए ग्रेटफुल रहे? हम कंप्लेंट्स उनमें जरूर चले थे, अरे बाहर आजकल ये व्हाइट ब्रेड नहीं खानी चाहिए, ब्राउन ब्रेड खाओ, मैगी का पैकेट बेकार है ये। लेकिन आप कोई भी चीज खाओ, कोई भी चीज खाओ, ग्रेटिट्यूड से करके खाओ, और वो आपके अंदर जाएगी ना तो वो अमृत का ही काम करेगी। इतनी पावर है ग्रेटिट्यूड में कि जैसे हम कहते हैं ना, ये खाना तो हमारे लिए बेकार है या कुछ है, ये खाना नहीं खाना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि आप ऐसा खाना भी जो आपकी नजरों में आपको लगता है, हालांकि खाना कोई भी बेकार नहीं होता, हम उसमें नहीं जाएंगे। कुछ भी हमारे मुंह के अंदर जाएगा वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से जाएगा, तो देखना वो आपकी बॉडी की एनर्जी कैसे बनती है। हाँ जी, आगे। भोजन एक उपहार है, हम्म। ये प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ हम्म। और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के हम्म। पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई हम्म। भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं।
और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि हाँ, इस पृथ्वी पर जीवनदायक कोई पानी। जादू है। देखिए, एक मिनट। जीवनदायक पानी, वाटर इज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट ऑफ धरती माँ। मतलब 72%, कितना परसेंट है वाटर हमारे जो पूरे वर्ल्ड में कहते हैं ना, कितना परसेंट 70% है? होता जो है। जैसे बाहर है उतना ही हमारी बॉडी में भी, उतना, 70% हाँ है। 70%, उतना ही हमारी बॉडी में भी। ये 72% है के अराउंड, आई आई थिंक, वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ। और उतना ही हमारी बॉडी में है, मीन्स खून जो पानी है हमारी बॉडी में, वो भी इतना ही है। तो देखो पानी कितना पावरफुल एलिमेंट है। आपने देखा ये कहाँ कहाँ पे यूज हुआ? पानी का इस्तेमाल करते हैं हम वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन, परिवहन, सड़कें बनाने में, कपड़े, कौन सी ऐसी चीज है? तो आप ना अभी तो पहले इन दो एलिमेंट से शुरुआत कर दो। धरती माँ, मुझे भी वो याद नहीं आ रहा, पर पवन गुरु पानी पिता मात धरती महत, हाँ, पवन गुरु पानी पिता मात। ये इतनी, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे स्क्रिप्चर्स में। हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है, पवन गुरु पानी पिता मात धरती मात महत। ये आप इसको पढ़ना। तो ये, इस और इसका मीनिंग भी क्या है? पवन गुरु, अभी तो हम उस पे पहुंचे नहीं, अभी तो हम सिर्फ अभी वाटर पे है। कि पानी क्या है? पानी पिता के समान है, कि हर जगह पानी के बगैर गुजारा ही नहीं है हमारा। हमने अपनी धरती पे आके पानी, और इस धरती माँ के तत्व पे ही, जहां से धरती माँ क्या है, धरती माँ के अंदर से भी पानी मिलता है। अंदर से तो, धरती माँ के तो अंदर से तो खैर बहुत कुछ मिलता है, बहुत खजाने, खाना पीना, सोना, हीरा जवाहरात, और पानी भी वहीं से मिलता है। तो पानी इतना शक्तिशाली है। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। तो पानी इतना इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या कभी उसको, तो अब आज आप एक असाइनमेंट तो ये अब याद रखना, आज आप पानी से किसी भी फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। वेदर यू आर टेकिंग बाथ, आप नहा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप सब्जी में पानी डाल रहे हो, आप आटे में, आटा भी तभी गूंदेगा, आप मतलब कुछ भी कर रहे हो, पानी के बगैर कुछ भी नहीं है। तो जब जब आप पानी के कांटेक्ट में आओगे, वेदर यू आर वॉशिंग योर हैंड्स, चाहे आप अपने हाथ धो रहे हो, चाहे आप पी रहे हो, चाहे आप कोई काम में यूज कर रहे हो, आपने पानी का क्रेडिट, थैंक यू। थैंक यू जल पिता, थैंक यू वाटर। जिस भी चीज से आप कनेक्टेड हो, धन्यवाद। धन्यवाद जल पिता, थैंक यू वाटर। आपने आज पूरा दिन का आपका ये असाइनमेंट है। अब और ये देखो, ये पानी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कि मैंने पहले भी जैसे बोला कि पानी हमारी थॉट्स कैच करता है। जैसे कि आ, इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे गंगा जी पे जाओ स्नान करने, गंगा जी के सामने कितने उच्च, मतलब वो मंत्रों का उच्चारण होता है, कितनी पूजा आरती होती है, कितना उसमें वो पानी में इतनी पॉजिटिविटी वो भर जाती है। तो उसमें तभी कहते हैं ना कि लोग, गंगा में जाओगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। पाप धुल जाएंगे इन द सेंस कि जो आपकी नेगेटिविटी है ना, वो वहां पे ड्रॉप हो जाती है बिल्कुल। क्यों हो जाती है? क्योंकि उस पानी में इतनी पॉजिटिविटी है। उसके आगे इतने मतलब मंत्रोच्चारण किए गए हैं, इतना उसको पॉजिटिविटी से भरा गया है, कि हम वहां जाते हैं, हम अपनी बिल्कुल नेगेटिविटी से फ्री होके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो, जैसे उस भाषा में तो कहेंगे ना, पाप धुल गए, हमारी नेगेटिविटी सारी उसमें चली गई। इतना शक्तिशाली है वो वाटर। तो पानी में इतनी शक्ति है। या जैसे आप सोचो गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहब, वो भी बिल्कुल उस जल के बीच में है, वो सरोवर के बीच में है वहां पर। तो वहां पे भी कितनी चैंटिंग्स होती है। कहते हैं ना, उस वहां पर जाके जो स्नान करता है ना, उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी की सारी नेगेटिविटी वहां पे निकल जाती है। इतना पावरफुल है वाटर। तो पानी जो है बहुत सारी एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स भी कैच करता है। तो आज का काम एक ये भी कर लो कि आपके घर में जहां भी आप पानी स्टोर करते हो, चाहे आप वाटर जग हो या आरओ से आपका पानी आता हो, तो ना उस वहां पे आप एक बेल लगा दो, जिसमें मंत्रोच्चारण चलते रहेंगे, चाहे गायत्री मंत्र चलता रहे। एक छोटी सी बेल आती है, मंत्रों की बेल आती है ना एक, तो उसको आप वहां पे कनेक्ट कर दो, कि आपके आरओ में या जहां पे भी आप पानी स्टोर करते हो, वहां पे ये मंत्र चलता रहे। ओम भूर्भुवः स्वः, या जो भी आपका फेवरेट मंत्र है, कुछ भी है। क्योंकि पानी में वो पॉजिटिव एनर्जी भरेगी, तो वो सब जो लिविंग हम ह्यूमन अपने, हम जो घर में सब रहते हैं, सबके अंदर वो एनर्जी जाएगी। हमारे कण कण में हमारा खाना भी बनेगा, उसमें भी वही वाला पानी जाएगा जो हमारे आरओ में स्टोर होता है या वाटर बॉटल्स में स्टोर होता है, जो भी एक्स वाई जेड आपके पानी का जहां जहां आपका सोर्स है। तो आपको ये, आप ये वो बेल लगा दो। ठीक है? नहाना है तो भी आपने पानी का एक ये प्रैक्टिसेस करके देखना। देखो बात तो फिर वही आ जाती है कि हर चीज का शुक्रिया, हर चीज का शुक्रिया। बट लेकिन आज का ये असाइनमेंट फोकस होके करना, पानी वाला, जल वाला। ठीक है? आगे बढ़िए। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो ये पानी में निहित है। लॉरेट एस्ली, 1907 टू 1977, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा?
जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें ये दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन की उसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। हम्म। ये तो सबको समझ में आ गया ना, कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। आगे, अविश्वसनीय। अवशिष्ट बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि हम्म। पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। हम्म। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके एक जीवन मिनट, में बदल देगी, जादू। एक मिनट। हाँ। हाँ। हाँ, जादू को कायम रखती है, चलो ठीक है। मतलब आप इस लाइन पे, इसमें क्या था? आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता, सकल कृतज्ञता मीन्स कि क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी। सकल होता है मास ग्रेटिट्यूड। अगर हम बैठ के, जैसे कि अगर इसमें क्या लिखा है, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। देखो, पानी के ग्रेट या किसी भी चीज के ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है। अगर जैसे कोई चाहता ना कि हमारे देश में भूखमरी और ये किसी को पानी या खाने की कमी ना हो, तो इकट्ठे बैठ के मास ग्रेटिट्यूड करो। खाने खाने और पीने से पहले, जैसे आप गुरुद्वारों में भी देखते हो, लंगर से पहले वो पहले पार्ट, मतलब वो एक प्रेयर कराते हैं, उसके बाद ग्रेटिट्यूड की एक प्रेयर कराते हैं, उसके बाद सबको कहते हैं कि तुम खाना अंदर ग्रहण करो। तो ये सकल कृतज्ञता में इतनी पावर है। अगर हम इकट्ठे बैठ के, चाहे आप देखो, चाहे चलो ज्यादा नहीं है लोग, तो आप घर के 5 जने या घर के 4 जने भी बैठ के खाने से पहले खाने का शुक्रिया करते हो, जल का शुक्रिया करते हो, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है कि हमारे देश में इसकी कमी होनी कम हो जाती। कमी तो देखो वैसे भी नहीं है, कमी वैसे भी नहीं है, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन लोगों को मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो उस नेगेटिव जोन में होते हैं, कंप्लेनिंग जोन में होते हैं कि जिनको आज खाना भी नहीं मिल रहा। लेकिन हमारे सकल ग्रेटिट्यूड में हम अगर मास ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज और पॉजिटिव होती है और उन लोगों को भी वो खाना और पीने में मदद मिलती है। तो ये मास ग्रेटिट्यूड की, जैसे लाइक माइंडेड लोग हैं जो इस ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को पता, जो जान गए समझ गए हैं, तो कुछ ऐसा अपना सिस्टम बना लो कि, या फिर जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं पर भी इकट्ठे बैठे हो बहुत सारे लोग, खाना आया तो सबसे पहले खाने का ग्रेटिट्यूड करो। पानी पीने लगे तो सबसे पहले पानी का ग्रेटिट्यूड करो। मास ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है, देखो जहां अगर बाहर पॉसिबल नहीं है, घर पे करो। और अगर घर पे भी पॉसिबल नहीं है, तो जो आपने अकेले जो करना है वो करना ही है। क्योंकि जब खुद करोगे, खुद को फील होगा, तो डेफिनेटली दूसरे को बताओगे। और जब दूसरों को बताओगे, तो मतलब यहाँ पर अभी जो एम्फेसाइज इन्होंने किया कि सकल सकल कृतज्ञता इसलिए हेल्पफुल रहती है कि जो दुनिया में किसी के पास भी अगर खान, जैसे कहते हैं ना, पर्याप्त तो है ही है, लेकिन उनकी नेगेटिविटी से, जो कंप्लेनिंग जोन से कुछ भी होगा, जो उनको खाना नहीं मिल पा रहा, तो वहां पे भी ये हेल्प करेगा कि मास ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है। हाँ जी, आगे। इसके अलावा भोजन और पानी के इसके लिए अलावा कृतज्ञता हम्म। आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना शुद्ध सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में हम्म। लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो उससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम हाँ। फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसे नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग यही साबित यही कोई लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आपने भोजन और पेय पदार्थ पर
कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं। तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। हाँ, एक मिनट। अब देखो, इसमें लिखा है अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो इससे वह शुद्ध हो जाते थे, मीन्स पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाते थे। कि उनको पता था, पहले के लोगों को तो सबको ही पता था कि खाने में हम पॉजिटिविटी, इसकी कृतज्ञता करेंगे तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी। और एक इसमें लाइन लिखी, क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव। इसका क्या मतलब है? ऑब्जर्वेंस इफेक्ट, कि उस चीज को महसूस करना, फील करना, मतलब ऑब्जर्व करना। जैसे कि आप सोचो कि ऑब्जर्वेंस इफेक्ट को हम क्या कह सकते हैं, या मैं इसको बाद में समझाऊं, लेकिन चलो थोड़ी सी हल्की सी क्लैरिटी देती हूँ इसमें कि ऑब्जर्वेंस इफेक्ट, कि हम किसी को देख रहे हैं, तब वो कैसे, जैसे सपोज एक माँ है अपने बच्चे को देख रही है, अपने बच्चे पे नजर रखी हुई है उसे, वो तब कैसे बिहेव करेगा, और उस पे नहीं देखेंगे तो वो तब कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, आगे इसको और हम डिटेल में समझेंगे। जब हम किसी चीज को खाते और पीते भी ऐसे ना, विद ऑब्जर्वेंस इफेक्ट, उसको देखने के हिसाब से, मतलब कि प्रत्येक उसका, उसको देख के हम ये चीज फील करते हैं, तो वो भी उस चीज में ऐसे रिएक्ट करता है। जैसे कि मैंने बोला ना कि माँ जैसे देखेगी बच्चे को, तो और जिसको नहीं देख रही होगी, तो उसको पता है मेरी माँ मुझे देख रही है, तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे थोड़ा सा उसमें रहना है या कैसे है। तो इसी हिसाब से अब इसको और आगे आपको डिटेल समझ में आ जाएगी। हाँ जी। भोजन। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब हम्म। आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा हो सकता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। ये एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो आया इसमें समझ, प्रेक्षक प्रभाव क्या है, कि हम जब किसी चीज को देख के, फील करके, उसको निगलने से पहले उसके स्वाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने पानी का घूंट भी एक मुंह में रख के, ये हम एक्सरसाइज एक एंड में करेंगे। ठीक है, अगर सबके पास यहाँ पे पानी मौजूद होगा तो उसको देखना, आप उसको ऑब्जर्व करके, फील करके जब आप अंदर लेके जाते हो तो उसके टेस्ट में भी फर्क आता है। ठीक है। आगे, आज कुछ भी खाने पीने आज से कुछ भी पहले। खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या हम्म। जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप तो यही मेरी कॉन्टेक्स्ट हमारे ना पूर्वजों ने, एक मिनट, यही कॉन्टेक्स्ट हमारे पूर्वजों ने समझाया था कि 32 बार चबाओ खाना, है ना। बोलते हैं ना, 32 बार चबा चबा के खाना खाओ, क्यों खाओ? उसमें ताकि उसके स्वाद को महसूस करो, और उसके लिए हर उस, जो जितनी बार चबा रहे हो उतनी कृतज्ञता महसूस करो, वाह कितना स्वाद खाना है ना। एक गराई को, एक बाइट को जैसे आप खा रहे हो, कितना स्वाद है, उसको महसूस करो, कितना स्वाद है इसके अंदर, कितना। आप देखोगे कि वो आपको और कैसा रिजल्ट देगा वो खाना। तो ये था 32 बार की, कि लोग कहते हैं ना 32 बार च्यू करो, चबाओ तो खाना अंदर हजम होता है, कुछ होता है, लेकिन 32 बार उस स्वाद को महसूस करो, उस स्वाद के लिए शुक्राना अपने मन में करते रहो। ठीक है। आगे। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जा, जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सच में लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। हम्म। यदि तो ये दिन में सबको, ये उनका तरीका है कि ऐसे जादुई धूल छिड़कना,
है ना, कि थैंक मतलब जादुई धूल छिड़क दी उसको खाने से पहले, ये उनका तरीका है। तो आप ये भी अपनी ये भी ट्राई कर सकते हो, दोबारा पढ़ना है ये चैप्टर फिर से। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, उस पर जादुई धूल छिड़क के कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या आपका अपना कोई स्टाइल हो सकता है, वो भी कर सकते हो। यदि दिन में। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसको एक दो पल के पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। हाँ, जीवन ये में लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन करो। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है, किस पर? खाने की भोजन से कृतज्ञता पर। जब भी आपने एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, जब आपने खाने की कृतज्ञता नहीं करी, सपोज आप कहीं बाहर हो या कहीं जल्दी में खाना खा रहे हो या भूल गए, तब भी आपको बैठ के, जब भी आपको याद आया कि हाँ मैंने दोपहर को कृतज्ञता नहीं करी थी, आपको उस पल में दोबारा पीछे जाना है और उसकी कृतज्ञता करनी है। ठीक है? मतलब एक भी मोमेंट, एक भी टाइम पर जब भी आपने कभी खाना खाया, कुछ भी खाया, आपको वो भूलना नहीं है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। क्योंकि ऐसे करने से आपको लगता है ना, इसके करने से क्या होगा, मैंने जैसे बोला ना कि आप किसी भी चीज के शुक्राने करोगे, आप अपने सपने के, अपने मन चाहे के और करीब जाते जाओगे। तो जो आपको लाइफ में चाहिए वो बड़ी इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। जहां जहां पर आप खाने पीने में ऐसे ग्रेटिट्यूड करोगे, वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगा। पॉजिटिव एनर्जी, जैसे मैंने पहले ही बोला, अंदर जाएगी, हमारी एनर्जी पॉजिटिव बनेगी, हमारी एनर्जी पॉजिटिव बनेगी तो हम पॉजिटिव एनर्जी के मैग्नेट बनेंगे। तो ऐसे कैसे सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो खाना और पीना सबसे बड़ा मेन फैक्टर है हमारी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने का, कि हमारी ग्रोथ को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि माँ के पेट से शुरू होके जैसे ग्रोथ और एनर्जी कैसे बनती है, खाने पीने से ही बनती है। शुरू से लेके चाहे दूध पिया चाहे कुछ पिया, और आज की डेट में भी जो खा रहे हैं, हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी, हम वो बन रहे हैं। तो हमने क्या बनना है, हमने पॉजिटिव एनर्जी का मैग्नेट बनना है। और पॉजिटिव का मैग्नेट बनने के लिए पहले हमें खाने का शुक्राना करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इसको रिलेट करना, इंटरकनेक्ट करना आपको आना चाहिए कि खाने का शुक्राना करेंगे तो सपने कैसे पूरे होंगे। कोई ये पूछे तो भाई सपने ऐसे पूरे होंगे कि जब तुम पॉजिटिविटी का मैग्नेट बनोगे, फूड का एंड वाटर का ग्रेटिट्यूड करके। आगे। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हो, तो आप जादू को होते देखोगे। हम्म। बस जादुई अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 8। जादुई तत्व नंबर 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। नंबर 3। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी। तो फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो भी होता है वो तो सेम ही होता है। तो ये दिन की जो चीज है, इसमें तो देखो आज कुछ ये लिखने का नहीं है, ये आज प्रैक्टिकल काम है। कि आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो आज बस, आज क्या, अब तो आपके अपने मुंह पे ये जो रखा था ना, हाथ इससे रखा था, अब मेरे मुंह के अंदर से जो जाएगा वो थैंक यू करके जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं अंदर। तो वो छोड़ दिया अब आपने, अब आप ये कर ही नहीं सकते। अब मेरे मुंह के अंदर एक टॉफी जाए, एक इलायची जाए, एक मिश्री जाए, छोटी सी चीज भी जाए, नन्ही सी चीज भी, शुक्रिया शुक्रिया। क्योंकि हमने अपनी उस एनर्जी को वो बनाना है। और देखो ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, आज की रिटर्न वर्क नहीं है, लेकिन अब आज आपके पास और मौका है कि जो पिछली पुरानी करके आए हो, सबने कॉपीज बना ली, अलग अलग बनाई है कि नहीं किसी ने?
नहीं बनाई, अनुराधा जी की स्माइल कह रही है नहीं। ठीक है। राकेश जी ने बना ली। राजेश जी आपने बनाई? आपकी तो मैं देख भी एक लूंगी। अच्छा, जॉय जी ने भी बना ली। नमिता ने भी नहीं बनाई, उसने हैंड रेज नहीं किया। सब अपनी अपनी बनाओ वो वाली कॉपीज। देखो, अगर जादू चाहिए जिंदगी में, फिर ये मत कहना कुछ नहीं हुआ हमारे साथ तो लाइफ में, इतनी प्रैक्टिस करी, ये तो मुझे सुनना ही नहीं है। अब तो मुझे एक दिन मैं क्लास रखूंगी जब मैं शेयरिंग लूंगी, क्योंकि जब शेयरिंग लूंगी तो मुझे आभास हो जाएगा भैया किसने ये प्रैक्टिस करी है, क्योंकि जिसने प्रैक्टिस करी होगी ना, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि उसकी लाइफ में चेंज ना आए, एक पॉजिटिव चेंज ना आए। ठीक है। तो आज का जैसे प्रैक्टिकल असाइनमेंट है, तो आप अपनी जो भी रिटर्न ग्रेटिट्यूड्स है वो आज उस पर और फोकस करके और ज्यादा उस पर ध्यान देके उसको पूरा कर सकते हो। और आज का क्या है, ऑब्जर्वेंस इफेक्ट। अब जैसे मैंने कहा था हम करेंगे बाद में, जैसे अब ये पानी का ग्लास है, ठीक है, ये पानी का ग्लास है। अभी आप आज आप ये भी करके देखना, या अभी सबके पास है तो चाहे अभी मेरे साथ कर लो। पानी का ग्लास है, आप पानी को ऐसे देखोगे, है ना, आप इसको एक मुंह के अंदर भरना, एक घूंट मुंह के अंदर भरना, और इसको ना थोड़ी सी देर रहने देना। थैंक यू वाटर, थैंक यू, ऐसे फील करना। आपको थोड़ी देर में पानी के ना टेस्ट में चेंज लगेगा, वो मिठास सी लगेगी। ये करके देखना आप। और पानी में इतनी पावर है ना, तो आज से सोच लो, आज से 40 दिन, जैसे हर चीज का मैं तो चलिया ही बोलती हूँ। 40 दिन, अगर आज से 40 दिन तक लेकर आपने पानी के खाने के शुक्राने किए, और अपने साथ ये, और ये बताऊं, जैसे किसी को, अब जैसे ये थोड़ी सी आगे की बात हो जाएगी, लेकिन हाँ शेयर कर देती हूँ कि ऐसा होता है कि पानी, थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल आईज, जैसे कि आप इसमें ये करके भी बोलोगे ना, तो भी आपको वो चीज मिलती है। जैसे अब किसी को पैसा चाहिए, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर माई गुड हेल्थ। तो पानी, जैसे मैंने बोला ना, सब कुछ सुनता है, सब कुछ सुनता है। और उसको जब पियो, एक एक घूंट को, उसका आपको टेस्ट भी फील होगा, और आप अपने सपनों के उतने ज्यादा करीब करीब क्या, पहुंच ही जाओगे वहां पे। इतना पावरफुल है ये पानी। जो उसमें आपने अपनी मन की, जैसे किसी भी अवस्था, जो आपको मन चाहिए अवस्था चाहिए, जैसे कि थैंक यू फॉर लव एंड पीस, शुक्रिया जल पिता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और उसके बाद आप पियो। और उसके बाद जब आप पी रहे हो, मुंह के अंदर थोड़ी कुछ सेकंड्स अंदर रख के, हाँ, जो जो भी चाय पी रहा है, ग्रीन टी पी रहा है, पानी पी रहा है, कुछ भी पी रहा है XYZ, तो ये करके देखना। हाँ, चाय पानी को मीठा घूट को लगना मत शुरू हो रखना, गया। गरम चाय को घूट को ऐसे मत रखना। पानी मीठा लगा मेरे को, मैंने अभी पिया उसको, ऑब्जर्व किया हाँ, तो जब मैंने अंदर लिया तो उसमें लगता है। पानी का टेस्ट डिफरेंस नजर आया, उसमें थोड़ा मीठापन लगा मेरे को, वैसे नॉर्मल हाँ, पीता हूँ वो लगता है। जैसे कि अभी ना हमें जस्ट सिर्फ अभी हमें हैप्पीनेस चाहिए, मतलब अभी कुछ पीस ऑफ माइंड चाहिए। शुक्रिया जल पिता इतनी शांति के लिए, थैंक यू वाटर फॉर दिस पीसफुल फीलिंग। इसके बाद आप पियोगे ना, आपको एक अंदर अलग सी शांति लगेगी, अलग सी ऐसी फीलिंग आएगी। पानी में इतनी पावर है। आप लगातार लग के, जैसे ना, जब मैं जहां से मैंने ये मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस सीखी, वहां पे लोगों की लाइफ में इतने चेंजेस थे। उनकी मतलब कि आइस के, किसी का जो भी मोटिव था, जिया जो भी ड्रीम था, बड़ा इजीली खाने और पीने से प्राप्त कर लिया। और मैंने खुद भी किया, लेकिन पहले अब मैं शेयरिंग लूंगी कि किसने क्या 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 फील किया। तो आज से आपकी ये भी स्टार्ट है। राजेश जी, आप नोट डाउन करते रहना कि इनको क्या क्या बोला है, क्योंकि एंड में हम पूछेंगे किसने 40 डेज का खाने पीने का शुक्रिया किया और उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी आई। तो ओके। एनी क्वेश्चंस, इसमें कुछ और क्लैरिटी चाहिए या कुछ और पूछना है? राकेश जी का हैंड रेज है। राकेश जी। हाँ जी, राकेश जी। थैंक यू मैडम, वंडरफुल लर्निंग के लिए। थैंक यू टू यू टू, थैंक यू, वेलकम। हाँ, मैं आज खाना मैं पीना बोल रहा कुछ था भी। आपने जो अलग अलग बनाने की। जी। हम्म। जी बोलिए हाँ जी, बोलिए। बनाई है आपने? हाँ, तो उसमें जैसे अलग अलग रिलेशनशिप के लिए, इसके लिए बनाई है सब, साथ बनाई है, तो उसमें हम्म। सारी नियम लिखना है और डेली पढ़ना है, नहीं यही नहीं, करना है नियामतों, ना। नहीं नहीं, देखो नियामतों की तो अलग है। जैसे मैं कहूँ, मेरे पास नियामतों की इतनी बड़ी है, मेरा रजिस्टर है, लॉन्ग नोटबुक है। तो ये मतलब ये मेरी नियामतों की है, नियामतों की तो अलग है। लेकिन वैसे अब वो मेरे दूसरे रूम में पड़ी है आज। उस दिन तो मैं साथ में लेके बैठी थी। जो छोटे छोटे नोट पैड्स हैं या नोटबुक्स हैं, हाँ, नियामतों का एक अलग रजिस्टर है, बाकी छोटा की देखो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इससे ना हमारे लिए इजी हो जाता है। कि जैसे मुझे आज हेल्थ का ग्रेटिट्यूड करना है, कि जब मुझे टाइम मिला, मुझे बीच में भी 15 मिनट्स का मेरे पास टाइम है, मेरा अभी कोई सेशन खत्म हुआ या मैं अभी थोड़ी सी देर फ्री हूँ, तो मुझे अभी क्या नीड लग रही है, मुझे रिलेशनशिप का ग्रेटिट्यूड करना है, या मुझे अभी इस टाइम पर अपनी हेल्थ का ग्रेटिट्यूड करूं, तो आप उस तरीके से इसमें ऐसे चलेंगे।
ठीक है ना, क्या मुझे क्या नाम है, मनी के एरिया में चाहिए, या जो भी मेरा ड्रीम है XYZ, तो मैंने इसलिए अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली तो चार चार मोटे मोटे चीजें होती हैं, है ना, चार पांच मोटी मोटी चीजें, तो इससे हमने उसका बना लिया। बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ब्लेसिंग्स का जो है, काउंटर ब्लेसिंग्स का, उसका अलग करना, नियामतें गिनने का, उसको अलग करना। उसको तो आप जितने लिखो उतने कम है, लेकिन नहीं, ये स्टार्ट तो विद 10। अलग है। जैसे ये ये अलग अलग हाँ, ये 10 अलग है नियामतें सारी, रोज लिखता हूँ मैं हेल्थ की। ऐसे, ये तो हाँ अलग हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ जी, ठीक नहीं, है। पर उसमें फिर अलग जो आपने बनाने का बताया, उसमें क्या लिखना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे हेल्थ के, जैसे सपोज आपको हेल्थ में कोई इश्यू है, ब्रेक डाउन है आपका हेल्थ में, या नहीं भी है, तो भी आप हेल्थ के ग्रेटिट्यूड करते रहिए, शुक्रिया हेल्थ का। जैसे कि मेरे कान अच्छे चल रहे हैं, थैंक यू, मेरी आंखें इतनी अच्छी है, मैं उसको देख, मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ, धन्यवाद, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई ईयर्स फॉर लिसनिंग द वॉइस ऑफ माई लव्ड वंस। मैं हिंदी में बोलूं कि शुक्रिया मेरे कानों का कि मैं अपने प्रियजनों की आवाज सुन सकती हूँ, पास हो दूर हो। ये आप रिकॉर्डिंग में देखना, मैंने काम, जैसे हेल्थ में आपको ये चाहिए, रिलेशनशिप में आपको चाहिए अच्छा, तो मैंने कहा था 3 फोटोग्राफ्स लेना। तो आपको किसी भी रिलेशन में अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आप वो 3 फोटोग्राफ्स उस पर पेस्ट करो, स्टिक करो, और उस एक एक के लिए उनका ग्रेटिट्यूड लिखो। उसमें मैंने कहा था 5 5 से ही शुरुआत करना, चलो आपको 10 नहीं मिलते, कि जो रिलेशनशिप चाहते हो आपका और अच्छा हो जाए। ऐसे पैसों की दुनिया में, पैसों की दुनिया में आप ग्रेटिट्यूड कैसे कर सकते हो? किसी को पैसे की एरिया में अंधेरा है, उसको मनी चाहिए, या मनी के एरिया में कोई रुकावट है, तो आप उसमें कैसे आगे पहुंचोगे जब आप पास्ट के मनी के ग्रेटिट्यूड करोगे? मैंने PPF का फॉर्मूला एक समझाया था स्टार्टिंग से ही, कि पास्ट में आपको कैसे ग्रेटिट्यूड करना हाँ, है, तभी आप, प्रेजेंट और ठीक है। प्रेजेंट में रह के, है ना, पास्ट के ग्रेटिट्यूड करोगे, तभी आगे वो प्रेजेंट में रह के हम बीज बो रहे हैं फ्यूचर के अपने, और प्रेजेंट में रह के ही हम अपना पास्ट के भी कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड। तो ये हमारा PPF का फॉर्मूला ये होता है। प्रेजेंट में रह के अच्छे कर्म कर रहे हैं, प्रेजेंटली भी ग्रेटफुल एनर्जी में है, तो अपने फ्यूचर के बीज क्रिएट, मतलब फ्यूचर की फसल तैयार कर रहे हैं। बीज अभी क्रिएट कर डाल रहे हैं, और फ्यूचर की फसल क्रिएट कर रहे हैं। और पास्ट में जाके, अपने पास्ट में जहां अंधेरे क्रिएट करके आए थे, नेगेटिविटी कंप्लेंट्स क्रिएट करके आए थे, तो वहां पे जाके रोशनी डालेंगे। शुक्रिया, जहां पे कंप्लेंट करी माफी मांगी, और फिर धन्यवाद किया। अगर मनी के एरिया में है, तो आपको अभी समझ में आया कि कैसे लिखना है, कि नहीं आया? मैं आपको और समझा दूंगी, क्योंकि मैं हाँ, चाहती हूँ आप करो। ये तो राजेश जी, अगर ये आ गया समझ में। यूट्यूब, राकेश जी, एक बार रिवाइज कर लेना यूट्यूब पे जाके, अपना जो सारे चैप्टर्स है ना पीछे के, वो सब डल चुके हैं अब। 4 डे और तक अगर ये हमारा डल दोपहर में चुका भी है। आते हैं प्रैक्टिस में 4 आपके डे तक साथ, डल तो चुका भी है आप हमारा। इनको। हाँ। तो एक एक दो चैप्टर ही हम पीछे हैं, बस वो एक बराबर। दो दिन में और अपडेट हो जाएंगे। तो आप सारा हम्म। पीछे रिवाइज कर सकते हो। और एक चीज और मैं कहूंगा, अगर मैम अलाउ करेंगी तो, जैसे हम रजिस्टर है, अगर हमारे पास बड़ा रजिस्टर है, तो हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, अलग अलग, कि थोड़े से पेज आगे के हम अलग कर लें, बीच के सेंटर के अलग, फिर उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, अगर मोटा रजिस्टर है वो तो। एक्चुअली ना फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, वो कैटेगराइज तो वो आप कर दोगे वैसे, जैसे जिसको इजी कंफर्टेबल लगता इजी है। मैंने ज्यादा रहता है, इजी कि वे के अगर लिए बताया था। मेरे को बैठे बैठे याद आया हेल्थ का, तो मैं ढूंढने की बजाय एक ही हम्म। रजिस्टर में अपना पीछे गया, और जहाँ मैंने हेल्थ शुरू किया मैं वहां से उसमें हेल्थ में लिखना शुरू कर दिया। तो उसको मैं डिवाइड भी कर ठीक सकता है, हूँ। तो जैसे जिसको। मेरे को तो जो अच्छा लगता है मैंने वो नहीं बताया, नहीं। कि हाँ, मैंने जैसे अपने जिसको रजिस्टर को कंफर्टेबल फोर लगता है। पार्ट्स में मतलब डिवाइड मुझे किया हुआ ये, है। हाँ जी। हाँ, मुझे ये इजी वे आउट लगा कि मैं पतली पतली नोटबुक्स ले ली, तो और वो मैंने रख दी अलग अलग हेडिंग्स डाल के, तो फिर मैंने उस पे काम किया। टाइम कितना हो गया? हाँ जी, ओके। नमिता आपका नमिता मैम, क्वेश्चन है। नमिता हाँ मैम, जी। मैम अनम्यूट कर दीजिए। मॉर्निंग मैम, थैंक यू एवरीवन गुड एंड थैंक यू मॉर्निंग। राकेश जी मेरे को चांस देने के लिए। मैम एक्चुअली मेरे को पूछना था, जैसे आप बोल रहे हो ना अलग अलग कॉपीज करने हैं, तो हम लोगों ने तो ग्रेटिट्यूड लिख लिया हल्का, जैसे रिलेशनशिप, इसका मनी, एवरीथिंग, कैरियर तो कर लिया, लेकिन मतलब मैंने एक दिन लिख लिया, मतलब जब जब मुझे थॉट्स आएंगे तब तब मुझे लिखना है, ऐसे आप बोल रहे हो? देखो, मैं ये कह रही हूँ कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में इस टाइम आपकी अंधेरा कौन सा वाला ज्यादा बड़ा है, जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पर आपको ज्यादा करना चाहिए। प्रैक्टिसेस तो सारे दिन में एक बार करनी चाहिए, लेकिन उस वाली प्रैक्टिस को ज्यादा टाइम दो। जैसे कि किसी का रिलेशनशिप, हर किसी का देखो एक ही इश्यू तो नहीं होगा, हर किसी के रिलेशनशिप ज्यादा खराब नहीं होंगे, हर किसी की हेल्थ ज्यादा खराब नहीं होगी, हर किसी के मनी इशू, किसी ना किसी हर किसी का एक एरिया जहां पे ज्यादा हमें ग्रेटिट्यूड की जरूरत है, उस पे हमें ज्यादा टाइम डिवोट करना है। बाकी प्रैक्टिसेस सारी करनी है। सपोज आपकी हेल्थ ठीक है ना, आपकी हेल्थ में अभी कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन हाँ, आप क्या करोगे? 10 मिनट्स बैठ के आपने अपने हेल्थ के ग्रेटिट्यूड्स लिख लिए, या आप अपने इस पे हाथ रख के पूरी बॉडी पार्ट्स का, दोनों चीजें हैं आपके पास, बोलने में, करने में, फील करने में, और लिखने में भी। लिखने से क्या होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है। तो जैसे आपने हेल्थ का, आपकी हेल्थ का एरिया बिल्कुल ठीक है,
बट लेकिन आप अपने हेल्थ के, थैंक यू फॉर माई वंडरफुल माइंड, इतने अच्छे आइडियाज देता है, शुक्रिया मेरी आंखों का, कानों का, जैसे हेड टू टो आप नीचे तक इन बॉडी पार्ट्स की ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, लिखने में भी और बोलने में भी। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हाँ मुझे सबके करने हैं या किस में, जब मेरी थॉट्स आएंगी तब करूंगी, आपकी थॉट ही डेफिनेटली वहां पे जाएगी पहले, जो एरिया आपका डाउन होगा, कि जिस एरिया में आप चाहते हो कि आपकी और रोशनी आए, जिस एरिया में चाहते हो ना कि मैं इसमें और आगे बढ़ूं। समझ पा रहे हो नमिता? यस मैम। है ना? तो आपको सारे आप ग्रेटिट्यूड्स करो, लेकिन फोकस ग्रेटिट्यूड लग के और टाइम थोड़ा वहां उस एरिया में ज्यादा बढ़ा दो। जैसे अगर आपको रिलेशनशिप में इश्यूज है, या कोई शादी करना चाहता है, किसी की शादी नहीं हो रही, या कोई पैसा और चाहता है, या किसी के ऊपर बहुत सारे लोन्स हैं, तो वहां पर इट मीन्स आपको दिख रहा है कि हमारे मनी के ग्रेटिट्यूड्स रहते हैं, ये हमारा कंप्लेनिंग एरिया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, कि कहाँ पर आपको ज्यादा स्नेहा ग्रेटिट्यूड, जी, ग्रेटिट्यूड आपको सब करने हैं, स्नेहा जी, बाकी। हम्म। स्नेहा आज है? अच्छा, कहाँ थी वो, मुझे तो दिखी ये नहीं। हैंड रेज है स्नेहा का, अच्छा। बोला भी नहीं है। पवन शर्मा जी, अनम्यूट कर दीजिए सर। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हाँ हाँ जी। जी हाँ जी। मुझे एक एग्जांपल बतानी थी, ये जो थैंक्स का, ये बहुत पहले की बात है, हम्म। मे बी अराउंड 86 87 के बाद। तब वो डीजीपी हम्म। थे मिस्टर रोबेरो पंजाब के। ओके। तो उनके ऊपर अटैक हुआ, वो ब्रेकफास्ट के बाद वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे अपनी जो कैंटीन थी, और वो पुलिस हम्म। ट्रेनिंग का हेडक्वार्टर था। हम्म। वहां पे जब अटैक हुआ तो मारने आए थे इसको, रोबेरो को, और वो वहां मिला नहीं उनको, और वो हम्म। वैसे 5 7 आदमी मार के चले गए। बाद में उसने बताया कि वो अच्छा। कहाँ थे। वो कहता मैं तो थैंक्स करने गया था किचन में, कि दे हैड ए वंडरफुल ब्रेकफास्ट मेड फॉर अस। वो थैंक्स करने गया था और वहीं किचन में ही रह गया, और वो उसको मारने आए थे, हाँ। लेकिन वो बाहर बाहर से आके चले गए। उनको पता ही नहीं था कि ये आदमी हाँ। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि डीजीपी लेवल का आदमी क्या हाँ। अपनी किचन में उनको थैंक्स करने जाएगा। ये दिमाग में नहीं था किसी के कि जितनी ऐसा भी हो देखो। सकता है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस एग्जाम्पल, बहुत हाँ अच्छा जी हाँ। आपने शेयर किया, थैंक इतनी पावर है यू। हाँ ग्रेटिट्यूड में। हाँ, इतनी इतनी हम्म। ताकत है इस इतनी चीज में। पावर है ग्रेटिट्यूड में। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और देखो, जो जितनी इंटेलेक्चुअल पावर जिसकी तेज होगी, मतलब वो इन चीजों में हम्म ज्यादा होगा, क्योंकि उसको हम्म। आभास है कि यहाँ पे करने से मुझे कहाँ क्या मिलेगा। इतनी पावर है ये बिल्कुल। हमारे खाने और पीने में। ये ये किसी और का भी हैंड रेज है, ब्लेसिंग्स, आई डोंट नो वो किसका। स्नेहा ही है, कोई नहीं, बात। हाँ चलिए ठीक है। आई होप एवरीबडी हैज, मतलब इज क्लियर नाउ फॉर ईच एंड एवरीथिंग। यस मैम। ठीक है। चलो, सी यू टुमारो, आई थिंक इट्स 7:30 नाउ। थैंक यू। ओके। सी यू टुमारो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस एवरीवन। अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस को रखिए जारी, सबको सब कुछ करना है, 2 से 3 ज्वाइन करना है, और सारी प्रैक्टिसेस करनी है। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। बाय मैम। और कोई कुछ शेयरिंग वगैरह करना चाहता हो या कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आज का हम चैप्टर क्लोज करते हैं और आफ्टरनून में मिलते हैं। ओके जी, गुड डे ऑल ऑफ यू।